Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is minor husband liable for maintenance. Why news? Recently, the Allahabad High Court in X versus State of UP and others has ruled that an application for maintenance under Section 125 and 128 of CRPC can be filed against a minor, particularly in cases involving child marriage, where the minor husband is responsible for maintenance. Background of the case: the revisionist husband, who was 13-year-old when married, was sought to be held responsible for maintenance by his wife and child. When the revisionist turned 16, the wife filed a maintenance application under Section 125 CRPC seeking Rs 5,000 per month for herself and Rs 4,000 for the child. The revisionist challenged the family court's order, claiming that as a minor, no application could be filed directly against him and that it should only be filed through his guardian. The family court had already granted maintenance for wife and child. What were the core court observations? Justice Madan Pal Singh held that there is no bar under Section 125 and 128 CRPC regarding application for maintenance against minors. The court clarified that these sections do not require minors to have a guardian to file a maintenance application. The court observed that Chapter 9 of CRPC does not specify that maintenance applications against minors must be filed through a guardian. The revisionist had not provided a high school certificate in the lower court, but it was submitted before the High Court indicating he had reached the age of majority at the time of the judgment. The court stated that while the revisionist couldn't maintain his wife and child as minor, once he turned 18, he would be responsible for their maintenance. Provisions in bold are: first, Section 125 of CRPC, which mandates that a magistrate can order a person to pay a monthly allowance to their wife, children or parents who are unable to maintain themselves if that person has sufficient means but refuses or neglects to do so. Second, Section 128 of the CRPC, which deals with the enforcement of maintenance orders. It specifies that a copy of the order of maintenance or interim maintenance shall be given to the person in whose favor it was made. It's the time for practice question. Can an application for maintenance be filed against a minor under Section 125 and 128 of CRPC? Option A, no. It must be filed through the minor's guardian. Option B, yes. There is no bar on filing such applications against minors. Option C, yes, but only if the minor is above 16 years of age. And option D, no, maintenance can only be claimed after the minor attains 18 years. Pin down your answers in the comment section below. नाबालिग पति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में फैसला दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 और 128 के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन नाबालिग के खिलाफ दायर किया जा सकता है, विशेष रूप से बाल विवाह से जुड़े मामलों में जहां नाबालिग पति भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब इस मामले की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। संशोधनवादी पति, जो विवाह के समय 13 वर्ष का था, को उसकी पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। जब पुनरीक्षणकर्ता 16 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें उसने अपने लिए 5,000 रुपये और बच्चे के लिए 4,000 रुपये प्रति माह की मांग की। पुनरीक्षणकर्ता ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ सीधे तौर पर कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता तथा यह केवल उसके अभिभावक के माध्यम से ही दायर किया जाना चाहिए। पारिवारिक न्यायालय ने पहले ही पत्नी और बच्चे के लिए भरण पोषण भत्ता स्वीकृत कर दिया था। चलिए अब जानते हैं इस मामले में न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 और 128 के तहत नाबालिगों के खिलाफ भरण पोषण के आवेदन पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन धाराओं के तहत नाबालिगों के लिए भरण पोषण का आवेदन दायर करने हेतु अभिभावक होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी के अध्याय 9 में यह निर्दिष्ट नहीं है कि नाबालिगों के खिलाफ भरण पोषण का आवेदन अभिभावक के माध्यम से दायर किया जाना चाहिए। पुनरीक्षणकर्ता ने निचली अदालत में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन इसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि फैसले के समय वह वयस्कता की आयु तक पहुंच चुका था।
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता नाबालिग होने के कारण अपनी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकता, लेकिन 18 वर्ष का होने पर वह उनके भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होगा। चलिए अब जानते हैं इस मामले में शामिल प्रावधानों के बारे में। सीआरपीसी की धारा 125 में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता को मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, यदि उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है। सीआरपीसी की धारा 128 भरण पोषण आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित है। यह निर्दिष्ट करती है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पक्ष में यह आदेश दिया गया था। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, क्या किसी नाबालिग के खिलाफ धारा 125 और 128 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, नहीं, इसे नाबालिग के अभिभावक के माध्यम से दायर किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, हाँ, नाबालिगों के विरुद्ध ऐसे आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं है। ऑप्शन सी, हाँ, लेकिन केवल तभी जब नाबालिग की आयु 16 वर्ष से अधिक हो। ऑप्शन डी, नहीं, भरण पोषण का दावा नाबालिग के 18 वर्ष का होने के बाद ही किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।